Resource person of the day, Dr. Preeti Khetrapal, Assistant Professor, Department of Human Genetics, School of Health Sciences, Central University of Punjab, Bathinda, Madam Principal, Dr. Neena Seth Pajni, fellow colleagues, and my dear students. It gives me immense pleasure to extend to you all very warm greetings of the day. I am Dr. Ruchika Jain, Assistant Professor in Commerce, Gobindgarh Public College. And it's my privilege to welcome you all to this webinar on the topic Polycystic Ovarian Syndrome, Role of Genetic Susceptibility and Environmental Conditions in the Pathogenesis of the Condition. My dear students, here I would like to mention that ovarian syndrome is a syndrome involving infrequent, irregular, or prolonged menstrual period, acne, obesity, or hair on the face of females. It is called a syndrome as it can cause multiple problems. The major reason of this problem is our diet these days, stress, and many more. Our resource person of the day will share her expert knowledge in the field, and I think it is very important for all of us to be aware about this problem. Respected Madam Dr. Preeti ji, Madam, here I would like to share that GPC puts the students at the center of everything it does. Here at GPC, the students are provided opportunities to learn new skills. GPC was established in the year 2003 and it is affiliated to Punjab University, Chandigarh. College is also enlisted under Section 2F and 12B. College is running BCom, BBA, BCA, BA, PGDCA, MA English and MA Punjabi. In such a short span of time, college has excelled in academics, cultural, sports and other fields. And in this pandemic situation, Madam Principal Dr. Neena Seth Pajni, she has taken an initiative to organize a 1-month webinar series. So far, webinars on various topics have been conducted, including a webinar on overview of intellectual property rights with special emphasis on copyright, in which our resource person of the day, Madam Preeti, shared her vast experience with our students. And ma'am, today again, we are highly thankful to you to accept our invitation again. Dear students, here I would like to introduce to you our resource person of the day, Dr. Preeti Khetrapal. She is Assistant Professor, Center of Human Genetics, School of Health Sciences, Central University of Bathinda. She has 15 years of experience at Punjab State Council for Science and Technology, Chandigarh, and from last 3 years, she is working at Central University of Punjab, Bathinda. She has been awarded with various fellowships by Department of Biotechnology, New Delhi, and Department of Science and Technology, New Delhi. She has specializations in the field of reproductive and developmental genetics, population genetics, and intellectual property rights. She has to her credit various books, research papers in the journals of national and international repute. She has received research grants from UGC and CUP as well. She is a registered patent agent also. And we are really very lucky to have such knowledgeable and experienced resource person with all of us. Now, to formally welcome our resource person, I invite Madam Principal Dr. Neena Seth Pajni, a lady of distinct vision, a fountainhead of illuminating ideas, and an idol of knowledge and inspiration to all of us. Over to you, Madam Principal. Thank you, ma'am Ruchika. Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Thank you, Dr. Preeti Khetrapal. Thanks for sparing time. It's the second time that you have been here interacting with our students. And here I want to share some of the
principals from other colleges and schools have also joined today. Some of my lady friend principals have joined, and I can see the name Dr. Neeru Arora is there. Some of other friends are also there, and we welcome you all, and welcome to all the ladies and girls. This is Girls' Day, so this is most common problem, and here I want to share some of our arts BA girl students are there, and other, as I told you earlier, some of the students are not from the science background. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हिंदी पंजाबी मिक्स रखें और ले पर्सन लैंग्वेज में ही सारी टर्म्स समझाएं. Dr. Preeti Khitarpal, as I know you for the last 20 to 22 years, you are a very sincere and dedicated teacher, and you have done extensive research on PCOD. तो आज आप बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं, डायग्नोस कैसे किया जाए और ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के बारे में आज आप बात करेंगे. ओवर टू यू मैडम प्रीति. Thank you. Thank you very much for a nice introduction, and very good afternoon to all of you. So yes, truly said, it's a ladies' time now, and we will of course we will share our journey, we will share our problems, we will share the common problems, our physiology, our health, our reproductive health, everything. Yes, in the next coming maybe half an hour. So as Madam Dr. Neena, she has told you that today I will talk about polycystic ovarian syndrome, a condition which is actually the sum totality, or I should say, in the pathogenesis of this condition, both the genetics and environmental conditions, they play a very important role. So सिंपल भाषा में अगर हम बात करते हैं कैसी होती है हमारी वुमेन लाइफ. वी स्टार्ट विद बेबी, राइट. बच्चे से बड़े होते हैं, बड़े होके हम लोग एक अडल्ट स्टेज पे पहुंचते हैं जिस पे अभी हम लोग हैं, एंड आफ्टर दैट बूढ़े हो जाएंगे. ऐसे सभी की लाइफ स्टार्ट होती है. ठीक है. बच्चे चाइल्डहुड से जब तक थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में मेनार्की. 10 इयर्स के बाद कभी भी हो सकता है, 15, 16, 11, 12. हम लोगों ने अभी देखा है कि मेनार्की बहुत जल्दी हिट करने लगी है गर्ल्स को. जब हम लोग, जो आप में से जो भी 40, 50 इयर्स के, हम लोग के टाइम में 15 एक कॉमन एक एवरेज एज हुआ करती थी, और अभी 10, 11 होने लगी है. मेनार्की जब हो जाती है, यानी कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाती है, हम उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 इयर्स तक रहता है. 40 के बाद यूजुअली हम प्री मेनोपॉज स्टेज हिट करते हैं, एंड 50, 55 के बाद जब भी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकती है तो हम एक मेनोपॉज स्टेज पे पहुंच जाते हैं. पूरे इस लाइफ स्टेजेस के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में. मेनोपॉज से जुड़े हुए अपने कुछ प्रॉब्लम्स है जिसपे कि एक्चुअली पूरा एक एंटायरली फील्ड ऑफ साइंसेस है जो फोकस कर रहा है, बिकॉज अभी लॉन्जेविटी काफ़ी बढ़ गई है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मेंटेन करके रखना. हम में से बहुत सारे लोग ना अभी भी ये नहीं समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हमें ये इम्पोर्टेंट, इसको हाइजीन और हार्मोनल बैलेंस हमारे सही तरीके से रहे, मेंटेन रहे, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर आप समझते हैं तो हमारे गोनाड्स होते हैं, जैसे बॉयज़ में टेस्टिस होते हैं, बॉयज़ में भी ऑफकोर्स अपने चेंजेस होते हैं. अभी तो हम लोग गर्ल्स की चेंजेस की बात कर रहे हैं. बॉयज़ में भी पबर्टी हिट होती है, बॉयज़ में भी कुछ स्टेजेस आते हैं, बट उनका रिप्रोडक्टिव फेज काफ़ी लंबा रहता है. और जो हेल्टर स्केटर, जो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हमारे बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं एवरी मंथ, वो सिर्फ वुमेन में ही होते हैं. मेल्स में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. फॉलिकुलर फेज रहता है जो हमारी बॉडी के अंदर गोनाड्स हैं, ओवरीज, उसके अंदर हर महीने एक ओवम बनता है, एग बनता है, और वो रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद ल्यूटियल फेज में जाता है.
रिलीज होने के दौरान हमारी जो यूट्रस है उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती रहती है, पूरे साइकिल में ही रहकर वो थिक होती रहती है। तो एग रिलीज होता है, वेट करता है कि उसको अगर स्पर्म मिलेगा तो वो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा, और नहीं बनता तो कुछ और तरह के हार्मोन चेंजेस होते हैं और जो हमारी यूट्रस की थिकनिंग होती है वो शेड आउट होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। ये कंटिन्यूड रहता है 1 दिन से लेकर 7-8 डेज तक, वेरी करता है। ये फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। पूरा जो ये साइकिल है इट टेक्स एनीवेयर, इट कैन टेक फ्रॉम 20 to 35 डेज नॉर्मली एक अडल्ट में। इस साइकिल के कारण ही हमें हमारे अंदर जो कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, टू गिव बर्थ, वो रहती है। We do not talk about menstrual cycle, but half of the women, half of the people in the reproductive age, they pass through this cycle. है ना, हम लोग एक ऐसे बात करते हैं कि जैसे होता तो सभी के साथ है, लेकिन we just ignore it, we do not talk about it. और हालांकि अंदर सब लोग बात करते हैं बट खुल के बात नहीं करते इस बारे में, एंड वी चूज टू इग्नोर इट। हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि ये हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, जबकि यही साइकिल के कारण जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है वुमेन की टू गिव बर्थ एंड टू फीड, ये रहती है। सो वुमेनहुड इज एक्चुअली it is actually the celebration of this all our physiology. हमारी फिजियोलॉजी अलग है, हमारी बायोलॉजी अलग है, फिर भी हम लोग हमेशा मैन के बराबरी करने की कोशिश करते हैं। नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम सुपीरियर हैं। हम सुपीरियर हैं तो हम सुपीरियर होते हुए क्यों मैन की बराबरी करेंगे? वी शुड सबसे पहले, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, पहले हमें ये समझना है कि हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है क्या, उसके बारे में ही हम लोग बात नहीं करते। और बहुत सारे मिथ्स और टैबूस उसके साथ जुड़े रहते हैं। खाना नहीं बनाना, किचन में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। बहुत सारे रूरल एरियाज में अभी बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी भी जिस जगह पे है, थोड़े बैकवर्ड एरियाज में उसको काउंट किया जाता है। तो हम लोग, हमारा ये प्रोजेक्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, जिसमें हम लोग बस्ती में जाके, कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके यंग बच्चों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, साइकिल, एंड देन वी टॉक अबाउट पीसीओएस। तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। बच्चे बहुत शाई होते हैं ना, इस एज में शाई होते हैं, फिर 40-50 आते आते फिर हम थोड़ा वुमेनहुड और हमारे अंदर थोड़ी पावर जागती है, फिर हम फिर भी थोड़ा सा फ्रीली बात करना शुरू करते हैं। आपको मालूम है कुछ एरियाज में तो ऐसा भी होता है कि घर के बाहर एक छोटे छोटे बहुत शेल्टरलेस उन्होंने कमरे बनाए होते हैं। इस जगह पे ऐसा है, और जब भी कोई वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको घर से बाहर वहाँ रहना पड़ता है, और बाहर रहते हुए उसको ठंड भी फेस करनी पड़ती है, बहुत बार रेप भी होते हैं। सो ये वुमेन रिलेटेड जो असॉल्ट है वो चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को, फिजियोलॉजी को नॉर्मल नहीं समझ रहे हो, उसको एबनॉर्मल को अनटचेबल समझते हो उस स्टेज पे, तो वो वुमेन खुल के कभी अपने से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात ही नहीं कर पाती, वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस ही नहीं कर पाती। हम ये बोल देते हैं कि उस समय पूजा नहीं करनी है, रिलीजियस बेसिस पे नहीं जाना। ये साइकिल नेचर ने हमें दी है, भगवान ने ही तो दी है हमें क्यों बनाए कि जो चीजें भगवान ने हमें दे दी, नेचर ने दे दी, वो गंदा कभी नहीं हो सकता, राइट? वो हमने थोड़ी ना बनाया, हमें भगवान ने, नेचर ने इसी तरह से बनाया है। तो इससे कुछ भी ऐसा मिथ और टैबू इससे जुड़ा हुआ बहुत सारी सोसाइटी में जुड़े हैं, सबसे पहले तो इन्हीं को दूर करने की जरूरत है। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझते हैं, उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो आप रियलाइज करेंगे, इनफैक्ट प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते हैं, हर व्यक्ति, हर वुमेन कभी ना कभी अपने लाइफ स्टेज पे ये जो इतनी सारी, इसमें ये जो आप देख रहे हो ना साइंटिफिक टर्म्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी ली हुई है, सिंपल भाषा में भी मैं बात करूंगी, ये इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबने फेस की हुई है। कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत डिलेड हो जाती है, कभी बहुत जल्दी हो जाती है, कभी इन बिटवीन स्पॉटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी बहुत ही हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा पैड्स यूज़ कर रहे हो 5-6 से ज़्यादा एक दिन में, कभी कई महीनों तक होता ही नहीं है। और डिसएमेनोरिया तो बहुत ही कॉमन है, 60-70% ऑफ एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम women or especially young girls, ये they complained about dysamenorrhea but they don't go to the doctor, किसी से बात नहीं करते, चलो की रेमेडीज लगा लेते हैं, रेस्ट कर लिया। डिसएमेनोरिया, एमेनोरिया, ये सब जो साइंटिफिक टर्म्स हैं,
इसमें कोई ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। सिंपल आप अपने हाथ से या खुद से सोच सकते हैं कि इस साइकिल से जुड़े हमने क्या-क्या प्रॉब्लम्स किस तरह की फेस की हैं। और कई बारी डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, जो देखा गया है कि ज़्यादातर तब जाते हैं जब पेन बहुत है, बहुत ज़्यादा मेंसेस हो रही है। जब कम होती है तो फिर बहुत बार ये कंडीशन जो होती है इग्नोर्ड रहती है। अब पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से बहुत कॉमन जो है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया। गर्ल्स में बहुत रहता है। तो ये छोटी-छोटी जो ये बस डाइट पे ध्यान देना है, ये एक्सरसाइजेस करनी है, यही बात हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने समझ लिया। ऑफ कोर्स हर एक को इसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, खुल के हम लोग बात नहीं कर पाते। आपस में पीयर ग्रुप में स्पेशली यंग बच्चे, यंग गर्ल्स बिल्कुल भी खुल के बात नहीं कर पाते। दे आर ऑलवेज शाय। हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। जस्ट इमेजिन अगर यही साइकिल, यही सारे चेंजेस मेल में होते, मैन में होते, तो ये मैनहुड बन जाता है ना, जैसे दाढ़ी मूछे, ये जो मैनहुड हम बोलते हैं, तो ये फिर तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो जाता जो जो मैन में है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी तो वैसे ही मेल डोमिनेटेड है। तो फीमेल और फीमेल से जुड़ी हुई बातें, बायोलॉजी, ये सब कुछ काफ़ी इग्नोर्ड रहता है हमारी सोसाइटी में। अब आज हमने ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत तरह की हो सकती है। हम लोगों ने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में नेक्स्ट हम लोग कुछ मिनट्स लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस है क्या? एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइनोलॉजिकल कंडीशन है। जैसे हमने पढ़ा अभी कि ओवेरियन साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस दौरान ल्यूटियल फेज आता है, फॉलिकुलर फेज आता है, मेंस्ट्रुअल होता है। तो उस दौरान हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिंपल भाषा में कहेंगे तो एफएस, एलएच, एफएसएच, और भी सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि फीमेल हार्मोन। क्योंकि जब आप पबर्टी हिट करते हैं, चेंजेस आते हैं, पबर्टी से पहले तक मेल फीमेल फिजियोलॉजी काफ़ी सेम रहता है, बच्चा हम चाइल्डहुड फेज बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेल में अपने हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज होने लग जाता है, फीमेल्स में अपने जो फीमेल स्पेसिफिक हार्मोन है, फेमिनिन हार्मोन्स हैं, वो बनने शुरू हो जाते हैं, उनका लेवल इंक्रीज होने लग जाता है और फीमेल स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, यही चेंजेस में आता है ब्रेस्ट फॉर्मेशन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, मेल में अपनी दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती है, उनमें वो सब उनमें अपना उनका अपना एक मैनहुड के पाथवे पे स्टार्ट हो जाते हैं चेंजेस, और हमारे वुमेनहुड पाथवे पे स्टार्ट हो जाते हैं चेंजेस। अब ये एंड्रोलॉजिकल कंडीशन बोल रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसेस की कंडीशन है। फीमेल की बॉडी में, वुमेन की बॉडी में कुछ नॉर्मल लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स रहते हैं, एंड्रोजेंस बोलते हैं हम लोग। तो ये जो मेल हार्मोन्स हैं, इनका लेवल बढ़ने लग जाता है और इसकी फिर कई तरीके से जो उनकी बॉडी में चेंजेस हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, वो दिखने लगते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है या स्कैंटी हो जाती है, कम आने लग जाती है। और ओवरीज में हमारे दो ओवरीज रहते हैं राइट लेफ्ट साइड पे, तो एक या दोनों ही ओवरीज में सिस्ट की फॉर्मेशन होने लगती है। अब ये देखिए, मैंने एक इमेज लिया है जिसमें आप ये देख सकते हो कि ये नॉर्मल ओवरी रहती है और पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि एक एग जब बन रहा है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, यहाँ से एक एग फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है और उसके बाद जो आसपास के सेल्स हैं वो सब डीजनरेट हो जाते हैं। मगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केस में क्या रहता है कि ये डीजनरेट होने की बजाय वो काफ़ी बड़े-बड़े होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। ओवेरियन डिसफंक्शन होता है, ओवम सिक्रीट नहीं होता, एक जो सिक्रीट होना चाहिए था वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता और फीमेल हार्मोन भी पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इस तरह के आप देख रहे हो मोटे-मोटे इसको गोले बन जाते हैं। तो यहाँ पे ना लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पेट में गोले बनना। ठीक है, पेट में उसको बोलते हैं गोलियां बन जाती हैं, पंजाबी या हिंदी की भाषा में बोलते हैं, ऐसे बड़े बड़े गोले। और ये इसको अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े होते जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो जाती है और अल्टीमेटली लास्ट में जाके इसको ऑपरेशन से इसको रिमूव करना पड़ता है, इसका फिर और कुछ नहीं रहता। तो बेटर यही रहता है कि हम लोग इसको टाइमली डिटेक्ट करें। टाइमली मतलब इसका जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो जो बीमारी होती है, ये मेनार्की के साथ ही शुरू हो जाती है होनी। जब इसके अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स कहीं ना कहीं वहीं पे ही होते हैं, 15, 16, 11, 12 जब भी हो रहा है स्टार्ट,
तो आप लोग इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो? किस तरह से हम लोग इसको अपने आस-पास, अपने फ्रेंड्स या अपने खुद में पहचान सकते हैं? सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक फीचर है, जो हमें दिखेगा, वो है या जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। एमेनोर्यिया, ओलिगोएमेनोर्यिया, एनोवुलेशन साइंटिफिक जो टर्म है, बेसिकली ओवम इसमें सिक्रीट नहीं हो रहा। 1 साल में 8 या उससे कम जब साइकिल रहता है, तो उसको हम लोग एमेनोर्यिया, ओलिगोएमेनोर्यिया बोलते हैं। बिल्कुल एब्सेंस रहेगा, 2-2, 3-3 महीने तक साइकिल होगा ही नहीं। अब होता क्या है, जो हमने ऑब्जर्व किया है कि जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहती हैं कि बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी आ रहा है, वो फटाफट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और जिनको 2-2, 3-3 महीने के बाद आते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऐसे केसेस देखने में आते हैं कि उनका साइकिल होता ही 2 महीने का है, 2 महीने 60 डेज़ के बाद नॉर्मल आ रहा है। वो बॉदर नहीं करते, उनको लगता है अच्छा है, उनको लगता है कि एक तो मुसीबत ही है, कितने दिन ऐसे खराब हो जाते हैं, पेन रहता है, ना ही आए तो अच्छा है। हाँ, इस तरह पैड नहीं लगाना पड़ेगा, वो पैसे अलग बचेंगे, कई-कई तरह के ठीक है, झंझट ही खत्म है सारा। लेकिन एक्चुअली में यही एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत सारे और प्रॉब्लम्स को आगे जाके जन्म देती है। सो अब ये अंडरलाइंग जो हम लोग प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है? ग्लैंड होते हैं कि जो ये हार्मोन्स बना रहे हैं, जिसमें ब्रेन में पिट्यूटरी है, और उसके बाद आपके नेक रीजन में थायराइड है, आपके ओवरीज हैं। सो बहुत सारे और इस तरह के जो ग्लैंड्स हैं, वो अपने-अपने सिक्रीशंस करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है। ये सब जितने भी हार्मोन्स हैं, एंडो हार्मोन्स हैं, ये आपस में इनका क्रॉस टॉक रहता है और कहीं ना कहीं से ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केस में होता क्या है, एक हार्मोन होता है जिसको एलएच बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ना लग जाता है। एक तो एलएच बढ़ जाता है, एफएसएच जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो फॉलिकल्स के इरप्शन के लिए हेल्पफुल है, वो कई बार चेंज होता है, कम होता है, कई बहुत बार केसेस में वो बिल्कुल अनचेंज रहता है। लेकिन एक इसको ना हम मेजर करते हैं रेशो से, एलएच एफएसएच रेशो, ये बढ़ जाता है। मेल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है और एक ये जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये बढ़ने लग जाते हैं। जब ये बढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली जो हमारी बॉडी में एंड्रोजन्स हैं, मेल हार्मोन है, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एस्ट्रोजन बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के सिम्टम्स और नज़र में आते हैं। अब देखिए, मेल हार्मोन्स जब बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा, दाढ़ी मुझे फेस पे हेयर्स आने लग जाएंगे। रदर हम इसको एक हमारा फेरमेन स्कोर होता है, उसके थ्रू हम लोग मेजर करते हैं। पूरी बॉडी में ही चेस्ट का रीजन है, स्टमक का रीजन है, पैरों पे, नेवल पॉइंट के आसपास, ये फेस पे, बहुत सारी जगह पे मेल लाइक हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, थिक हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद और स्किन खराब होने लग जाती है, स्किन पे एक्नेस आने शुरू हो जाते हैं, स्किन टैगिंग शुरू हो जाती है, यानी कि ब्लैकनिंग होनी शुरू हो जाती है। आपके छोटे छोटे इरप्शंस होती हैं, बिल्कुल जैसे उसको स्मॉल ट्यूमर लाइक कहते हैं, वो होने लग जाते हैं, उसको कलर चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे इस तरह के चेंजेस होते हैं। और एलोपेशिया की कंडीशंस होती हैं, जो बाल्डनेस है, मेल में होते हैं ना, जो बाल झड़ जाते हैं, तो वो तक कंडीशन जो है वो फीमेल में भी लग जाते, नजर आने लग जाती है। ये पर हर एक जो कंडीशन है ना, इसके अंडरलाइन और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मल्टीपल जब रीजंस प्रेजेंट रहते हैं और हार्मोन चेंजेस, हार्मोन लेवल देखा जाता है, तभी आप उसको पीसीओएस के साथ कोरिलेट कर सकते हो। हेयर फॉल स्पेशली वुमेन में इस एज में बहुत कॉमन रहता है, 30-35 के आसपास। कुछ और कारण भी हो सकते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी लिंक्ड है। तो एक ही सिम्टम को देख के नहीं आपने सोचना है कि अगर ये आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि हमें भी पीसीओएस है, नहीं। और इसके साथ साथ ओबेसिटी होने लग जाती है। अब ये आपस में बना एक फील्ड ऑफ रिसर्च है कि ओबेसिटी के कारण पीसीओएस हो रहा है या पीसीओएस केसेस को ओबेसिटी होती है, बिकॉज ये इंटरलिंक्ड है। वैसे भी जब आप स्पेशली एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा फैट डेपोजिशन होता है, तो हमारे हार्मोन्स को वो डिस्टर्ब करता है और कहीं ना कहीं से इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। तो और भी तरह मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, दूसरी बीमारियां हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो सब होती है, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट पीसीओएस, जैसे हम लोगों का भी जो एक्सपीरियंस है,
ज़्यादा स्पेशली इस एरिया में यंग जो बच्चे हैं वो मोस्टली अंडर वेट या एम्बियंट वेट में हैं, बहुत कम आपको मोटे ओबीज मिलेंगे या ओवर वेट मिलेंगे। बट धीरे धीरे कंडीशन ये स्टार्ट हुई 15-20 पे, ठीक है, 30-35 तक आते आते इनफैक्ट 25 के आसपास भी वेट गेन होना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस होता है, ये पूरा पैथोजेनेसिस धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद स्पीड अप कर लेता है। फिर सब कुछ जो अंदर का हमारा जो सिस्टम इंटरलिंक्ड है वो सारा का सारा डिस्टर्ब होके पूरा एक तरह से डेवास्टेशन प्रोड्यूस करने लग जाता है एक फीमेल बॉडी के अंदर। हमारे जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, HDL का, यानी कि जो आप सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जो बैड लिपिड्स हैं वो बढ़ने लग जाते हैं और जो अच्छे लिपिड्स हैं उनका उनके अमाउंट कम होने लग जाती है। सो अंडरलाइन जब आप देखते हो बायोकेमिकली हमारे अंदर क्या हो रहा है कि हार्मोन्स जो हमारे गुड हार्मोन्स थे, फेमिनिन हार्मोन्स थे, उनका लेवल कम होने लग जाता है और जो मेल हार्मोन्स हैं, एंड्रोजेंस हैं, उनका लेवल इंक्रीज होने लग जाता है। इसकी वजह से हमारे जो फिजिकल अपीयरेंसेस है वो चेंज हो जाती हैं, मेल लाइक फीचर्स आने लग जाते हैं, हेयर ग्रोथ हो रहा है, एक्नेज हो रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, स्किन टैगिंग शुरू हो जाती है, ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन स्टार्ट हो जाती है, लॉस ऑफ हेयर बढ़ जाता है और इंक्रीज इन वेट होता है, स्पेशली फैट गेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है इन एंड अराउंड द एब्डोमिनल रीजन। ये अंडरलाइन है जो आपको बाहर से नजर आएंगे। प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए दो ही टेस्ट होते हैं, एक बायोकेमिकल टेस्ट है और दूसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो किया जाता है। सो बायोकेमिकल में यूजुअली LH FSH किए जाते हैं, हार्मोनल टेस्ट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बट अगर आप करवा सको या गवर्नमेंट सेटअप में काफ़ी रिड्यूस प्राइस पे भी मिल जाते हैं। और इसके अलावा कुछ और, सिर्फ यही LH FSH तो मेन है, बट इसके अलावा बहुत सारे और हार्मोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन है वो कम होने लग जाता है, एंटी मलेरियन हार्मोन वो बढ़ जाता है, और इसको बोलते हैं वैसे तो सिस्टर है ये डिसऑर्डर्स, PCOS एंड थायराइड, दे आर लिंक्ड। थायराइड अल्टीमेटली लीड टू डिस्टर्ब फेमिनिन हार्मोन्स और PCOS लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, और PCOS भी बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक रहे तब थायराइड कंडीशंस देने शुरू कर देता है। बट स्केंटी जो साइकिल्स हैं ये कई बार थायराइड डिसऑर्डर्स पे भी देखने को मिलती हैं। सो जिस टाइम फर्स्ट टाइम अगर टाइमली डायग्नोज हो रही है कंडीशन, तो यूजुअली डॉक्टर्स ये भी एडवाइस करते हैं कि थायराइड डिसऑर्डर्स को आप रूल आउट कर दो स्टेज पे, थायराइड हार्मोन्स चेक करके। और एक और कंडीशन होती है जिसमें कई बार ट्यूब ग्रोथ हो जाता है तो प्रोलैक्टिन की लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको भी रूल आउट करने के लिए प्रोलैक्टिन लेवल भी चेक किया जाता है। सो बायोकेमिकल टेस्ट किसी भी आप लैब में जाएंगे, जो प्रोफेशनल लैब्स है उसको PCOS पैनल बोलते हैं, वो आप वहाँ पे जाके वो डॉक्टर की ऑफकोर्स सलाह पे आप करवा सकते हैं, तो वो सारे के सारे हार्मोन्स कर देंगे। अदरवाइज फर्स्ट जो हार्मोन्स है उनको किया जा सकता है। और दूसरा है पॉलिसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी, वो देखना थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी। सो ओवरीज में अगर 12 या 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स नज़र आते हैं, उनका डायमीटर है एक कि अगर वो डायमीटर में आपको काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल ओवरी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, 10 mm³ से बढ़ रहा है, तो उसको वो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू डायग्नोस किया जा सकता है। बट कई बार इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में, स्पेशली अगर ये यंग एज पे आते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बायोकेमिकल और अल्ट्रासोनोग्राफी में से एक पॉजिटिव रहता है, एक नेगेटिव रहता है। अल्टीमेटली ये सारी कंडीशंस डेवलप होंगी पेशेंट में अगर वो मैनेज ना किया जाए, ये सब कुछ होगा। सो एक नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंडीशन नहीं है। PCOS को खुद हम लोग कई सब टाइप्स में डिफाइन करते हैं। अंडरलाइंग इसके मैकेनिज्म, मैनिफेस्टेशंस थोड़ी बहुत वेरी कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली ये जस्ट स्टेज है, कितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचे हैं। हम PCOS के बारे में क्यों इतनी बात कर रहे हैं, क्यों इतना अवेयरनेस कर रहे हैं, क्यों इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इतने प्रोजेक्ट्स दे रहा है, क्यों DBT हमारी गवर्नमेंट इतने बात कर रहे हैं। PCOS जो है अबाउट 10% ऑफ द वुमेन, और वेरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। हम लोग अभी मालवा रीजन के ऊपर काम कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कितना प्रेवलेंस है। सो हर पॉपुलेशन में अपना कुछ प्रेवलेंस है। कुछ जगह पे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स 80% तक रिपोर्ट की गई हैं, और PCOS भी बहुत हाई प्रेवलेंस रिपोर्ट किया गया, अबाउट 20% भी, और कुछ पॉपुलेशंस में बहुत कम, अबाउट 5% के करीब भी रिपोर्ट किया गया है। PCOS को समझना, मैनेज करना क्यों इम्पॉर्टेंट है,
बिकॉज जिनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना, हम लोग भी अब देखते हैं फील्ड में जाके, जब यंग गर्ल से बात करते हैं उनको लगता है कि अगर पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो अच्छी बात है, ना हो कम हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस समय हमें ये नहीं मालूम होता कि ये कल को जाके कितनी बड़ी और प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारे फेमिनिन हार्मोन्स का बैलेंस रहना कितना इम्पोर्टेंट है। पीसीओएस केसेस जो है उनमें बहुत हाई इंसिडेंस देखे गए हैं ओवेरियन कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के, यूट्रिन कैंसर के, या दैट मीन्स जिसको पीसीओएस है वो women is at the risk of developing certain type of cancers, women related cancer at the later stage of her life, और स्पेशली अभी लॉन्जेविटी बढ़ने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। सिमिलरली बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाते हैं विद एज एंड व्हेन वेट गेन हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर डायबिटीज का आपको पता है अपनी खुद की कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस तरह के जो पीसीओएस के केसेस हैं उनमें रेगुलर ग्लूकोज लेवल चेक करते रहें। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड देन एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली इट कॉजेज इनफर्टिलिटी, और ज़्यादातर जो केसेस हैं ये अराउंड 30 आईवीएफ सेंटर्स में पहुंचते हैं ड्यू टू प्राइमरी इनफर्टिलिटी और रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। सो फर्टिलिटी हमारी सोसाइटी में कितनी इम्पॉर्टेंट है, आप सब लोग जो मैरिड वुमेन है अच्छी तरह से समझते हैं। हमारी सोसाइटी फैमिली बेस्ड है, मैरिज होना लड़की की बहुत ज़रूरी है, मैरिज होने के बाद टाइमली बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, और अनफॉर्चुनेटली जो वुमेन नहीं कंसीव की कर पाती है उसको और बहुत तरह के फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। हम हमारी सोसाइटी अलग है, इंडियन सोसाइटी अलग है, हम उसको डेवलप कंट्री के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। तो बहुत ज़्यादा वुमेन के ऊपर प्रेशर रहते हैं, और हमारी तो ऐसी कंट्री है जो कि अगर अच्छी खासी हेल्दी बेटियां भी हों और तब भी वो अपने के लिए मुश्किल कर देती है। तो हम लोग जब इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, अवेयरनेस से काफ़ी फ़र्क भी पड़ रहा है। बट जो बच्चे, हम उनको बोलते हैं कि देखिए जो बच्चे आप लोग 15-20 साल में आपके लिए ये बात बच्चे नहीं सोचते हैं कि कल को शादी होगी, फैमिली बढ़ाना इम्पोर्टेंट है, और इग्नोर करते हैं, वो बाद में जाके वन ऑफ द रीजन ऑफ डिवोर्सेस भी बनते हैं। और हमारे पास अभी ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही है बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, और उस मेंटल ट्रॉमा के कारण उनका जो हेल्थ होता है वो और ज़्यादा इफेक्टेड होता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी लॉसेस अगर बार बार होते हैं, बार बार अबॉर्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा एक अगेन ये एक तरह का मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा रहता है एक वुमेन के ऊपर, बहुत ज़्यादा, और हेल्थ के ऊपर एसोसिएटेड दूसरे रिस्क रहते हैं। और इसके अलावा ये टोटल ओवरऑल भी फिजिकल अपीयरेंस और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, हर एक किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि उसके फेस पे हेयर्स आए, फिर उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, स्पेशली अगर यंग एज है, बच्चे टीन एज हैं, 20-25 अभी भी नहीं हुआ, फेस में एक्नीज नजर आ रही हैं बहुत, तो एक तरह से उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हर कोई यंग दिखना चाहता है, हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन अच्छी हो, उसके हेयर अच्छे हों, लंबे बाल हो, घने हो, सो एवरीबडी वांट्स दैट। तो ये फिर एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि पीसीओएस के कारण मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, फिर मेंटल हेल्थ से और वुमेन स्पेसिफिक हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और ज़्यादा एग्जैगरेशन हो जाती है कंडीशन की। तो एक विशियस साइकिल है जिसमें से फिर वो अफेक्टेड जो इंडिविजुअल होता है उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अब ये सब हमने समझा कि पीसीओएस है क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ना, क्यों ज़रूरी है इस कंडीशन को समझ के टाइमली डॉक्टर के पास जाना। बट ये होता क्या है, क्यों हो रहा है? सी, पीसीओएस एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, कोई सिंगल जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम सिंपल भाषा में तो कहें तो जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, हम हमेशा अपने पेशेंट जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम एक ही चीज़ बोलते हैं, जस्ट लाइक डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बहुत सारे, क्योंकि डायबिटीज़ सब लोग मीठे की बीमारी को ना समझते सब लोग अच्छे से हैं कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी कंडीशन लेते हैं कि बस मीठा नहीं खाना और आप नॉर्मल एक ज़िंदगी जी सकते हो। तो ऐसा ही पीसीओएस के साथ भी है।
सिर्फ आपको अपने अपने डाइट का, अगर आप अपने फिजिकल एलिमेंट्स का और टाइमली डॉक्टर के पास जाते हो तो एब्सोल्युटली नॉर्मल कंडीशन जी सकते हो। हम आपको जो बोल रहे हैं कि ये चांसेस हैं कि ये आपको अगर किसी को पीसीओएस है तो टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर तक होने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहती है, बट ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पूरा का पूरा 100% मैनिफेस्ट करेगा टाइमली इंटरवेंशन से। और ऐसा, और पीसीओएस जो जिनको है ये प्रॉब्लम, वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से भी उन मदरहुड को उन्होंने अचीव किया हुआ है, और मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ भी। बट ये है कि पहला क्वेश्चन ये होता है कि डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर और टाइमली हो, ताकि मैनेजमेंट करना इजी हो जाए। सो जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मल्टीपल रीजन से होती हैं, कैंसर जैसी है, डायबिटीज है, हार्ट की एलिमेंट है, वो आप समझते हो कि फैमिली में भी रन करते हैं। जैसे हम ये कहें कि दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो बच्चों में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको क्या करना है, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को शुरू से ही ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से पीसीओएस भी है, और इसको मेल्स में बोलते हैं पीसीओएस लिंक्ड करेक्टर्स, यानी कि मेल में तो यानी कि फादर में या मेल मेंबर्स जो है फैमिली में, इसमें दूसरे तरह के मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं, लाइक थायराइड का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो मैनिफेस्टेशंस उस तरह की रहती हैं। तो जो पीसीओएस के केसेस सारे नहीं, बट एक परसेंटेज है जिसमें कि मल्टीपल फीमेल मेंबर्स मिलेंगे फैमिली के, जिनको थायराइड की या पीसीओएस रिलेटेड सिम्टम्स की प्रॉब्लम रहेगी, और उसी फैमिली में जो मेल मेंबर्स होते हैं उनको किसी और जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है वो रह सकती हैं। सो इसका बहुत बड़ा एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है, लेकिन उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सो ये तो हमारी सिंपल ससेप्टेबिलिटी है, जिसको आप समझ रहे हो कि अगर एक फैमिली में दोनों पेरेंट्स या सिबलिंग को डायबिटीज है तो चांसेस बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सबको हो जाएगा। और अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है कि कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगा। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी का मतलब है चांसेस बढ़ना, ऐसा नहीं है 100% होगा या बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं ज्यादा फोकस इस जीन्स और इसकी टर्मिनोलॉजी पे नहीं कर रही हूँ, बट ये इतना हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसमें फीमेल हार्मोन्स बन रहे हैं, उसका पूरा अपना एक पाथवे है, और उस पाथवे में बहुत सारे जीन्स है, अबाउट हंड्रेड्स ऑफ जीन्स, और उनके छोटे छोटे कुछ वेरिएंट्स होते हैं, उनको एसोसिएट किया गया है पीसीओएस की कंडीशन के साथ, जो को सिप्स हैं, एआर है, एसएचबी है, एलएच है। इनफैक्ट इवन वो जीन्स जो कि एनर्जी हीमोस्टेसिस से लिंक्ड है, लाइक एफटीओ सिंपल भाषा में। और हम बात करें तो आप देखते होंगे कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता है ना, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी बहुत जल्दी वेट गेन कर जाते हैं, या उनके लिए वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं से उनके जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, और वो जीन्स को भी आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो वो जीन्स की जो वेरिएशंस हैं बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ जीन्स हैं, अलग अलग पॉपुलेशन में इसको देखा है। और हम लोग अभी मालवा रीजन की पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग भी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें पीसीओएस का इंसिडेंस बढ़ रहा है, सभी जगह पे बढ़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में हर पॉपुलेशन में पीसीओएस क्या, जितने भी मल्टी फैक्टोरियल कंडीशंस हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, सबका ही प्रेवलेंस बढ़ रहा है, सबका इंसिडेंसेस बढ़ रहा है। तो ये जो इंक्रीज है इसका रीजन क्या है, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल इन्वायरमेंट का है और कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीन्स का है। जो जीन्स हमारे ऑलरेडी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है। तो ये जीन्स हमें कुछ बीमारियों के लिए अगर ससेप्टेबल भी बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजों के लिए हमें ये स्ट्रेंथ भी देते हैं। तभी आप लोग सब एडल्टहुड स्टेज तक पहुंचे हो, हम सबके सब कुछ जो बाकी के जो प्रोसेसेस हैं वो ठीक तरह से हो रहे हैं। इन्वायरमेंट का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके इवन दो एरिया, जैसे यहाँ का रीजन बोलते हैं हैवी मेटल्स का एक्सपोज है, तो हम लोग ये भी देखने की कोशिश करें कि हैवी मेटल्स के एक्सपोजर का कुछ इसके साथ लिंक्ड है या नहीं। केमिकल पेस्टिसाइड्स बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है
और अभी तो लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑर्गेनिक पैटर्न्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक खाने की तरफ जा रहे हैं। बट ये पेस्टिसाइड्स अब हमारे खाने में तो हैं, हम पूरी तरह से इसको नहीं निकाल सकते, पानी में भी कहीं ना कहीं से रहता है, तो पूरी तरह से हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं। लाइफस्टाइल चॉइसेस है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हो, कितना योगा करते हो, किस तरह का खाना खाते हो, घर का खाना खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, स्पाइसेस ले रहे हो आप, या सिंपल फूड ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, या जंक फूड खा रहे हो। अभी तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि जो जो पिज़्ज़ा, ये पास्ता, ये मैगी, ये सब कुछ हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं खाई हैं, ये हम हमें पता भी नहीं था ये। लेकिन जो आज की जनरेशन है, वो बच्चे शुरू से इन चीज़ों में ही पल के बड़े हो रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत कॉमन है। और बहुत बार फैमिलीज़ में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं जब पेरेंट्स रोकते हैं और बच्चे, ऑफ कोर्स वो बच्चे हैं, नहीं समझते और फिर भी इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। और बहुत सारे और रीजंस हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ रहा है, हवा में पोल्यूशन बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इनफैक्ट हैवी मेटल्स की प्रेजेंस और ट्रेस एलिमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिंक, कॉपर, उनकी डेफिशिएंसी भी पीसीओएस के साथ लिंक्ड है। क्योंकि हम लोग अगर जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैट इंटेक है, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांस फैटी एसिड्स हम लोग खा रहे हैं और उनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू कम है, तो जो हमारे खाने में जो ट्रेस एलिमेंट्स हमें बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए थे, बट वो इन सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन्स तो सभी समझते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, और पीसीओएस एक ऐसी कंडीशन है, उसका साइंस, ह्यूमैनिटीज या किसी भी फील्ड से कुछ मतलब नहीं, वो तो है एक वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जीन्स और इसके जो डिफरेंट रीजंस है वो उसके अंडरलाइन कॉजेज हैं। सो जो जीन्स हैं, जीन्स जो सभी समझ रहे हैं, तो कुछ तो उसकी ससेप्टेबिलिटी है, बट दूसरा है कि वो जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए भी बहुत हद तक इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट जो टर्मिनोलॉजी जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो फील्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंट फैक्टर में कैसे क्रॉस टॉक है, उसके लिए कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे जीन्स, हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर बहुत सारे फिनोमिनल हैं, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, सुमोलाइशन, बहुत सारे हैं। उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए जो हमें खाने से मिलता है हमारी बॉडी को, उसमें काम करने के लिए एंजाइम्स को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी हमें खाने से मिलता है। सो ये सारे जो है ये लिंक्ड है, ये सारे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। सो किसी में हो सकता है कि किसी पेशेंट में या सब्जेक्ट में रोल ऑफ इन्वायरमेंट ज़्यादा हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर कम हो सकता है। इसीलिए पीसीएस की मैनिफेस्टेशन भी बहुत अलग अलग है। किसी को बायोकेमिकल पॉजिटिव आएगा, किसी को अल्ट्रासाउंड पॉजिटिव आएगा, किसी को दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे और किसी को एक नेगेटिव रह सकता है। तो पैथोजेनेसिस वेरी कर सकता है, रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कंडीशंस भी वेरी कर, दैट विल ऑल डिपेंड किस तरह के हमारे जीन्स हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट फैक्टर्स से हम लोग एक्सपोज हैं और कैसे इनका आपस में क्रॉस टॉक चल रहा है। सो ये सारे के सारे लिंक्ड हैं। अब हमने ये समझ लिया कि पीसीओएस कंडीशन क्या है, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। Now after this we need to learn how to manage the condition, कैसे आप उसको संभाल सकते हैं। So पहली बात तो है कि खुल के बात कीजिए, हम लोग खुल के बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसके बाद ही उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स के पास फटाफट पहुंच जाते हैं सब्जेक्ट्स, अगर उनको कोई दिक्कत है, बहुत ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत एक्सेसिव हो रहा है, जब कम होता है, स्कैंटी होता है, तो फिर वो नहीं जाते। तो यहाँ पे टाइमली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे अपने एक्सपीरियंस में वो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में सिर्फ 2% लोग ही अवेयर है पीसीओएस कंडीशन के बारे में। ये हमारा भी पेपर हमने अभी रिसेंटली ही कम्युनिकेट किया है, जो हमारे यहाँ एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे की फाइंडिंग्स हैं, जबकि बहुत सारी और पॉपुलेशंस में 40%, 60% तक अवेयरनेस रिपोर्टेड है। सो देखिए कितना लो प्रिविलेंस है, सिर्फ जो अवेयरनेस है कितना लो है, सिर्फ 2%, 3%, कुछ भी नहीं है। और सेम प्रेवलेंस जो अवेयरनेस का लेवल जो है वो रूरल पॉपुलेशन में भी है, उतना ही अर्बन पॉपुलेशन में भी है।
लेकिन जब हम पूछते हैं, सबको मालूम है सारा अली खान, सबको पता है, सबको पता है। अभी आज की जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स देखते हैं कि वो बहुत सुंदर है, स्लिम ट्रिम है। और अगर पुरानी फोटोग्राफ्स देखें जो आपको गूगल पे मिल जाएंगी, तो शी वॉज वेरी ओबेस और उसके लुक्स बिल्कुल डिफरेंट थे। एंड शी हैज डिस्क्लोज शी इज वेरी एक्टिव लेडी, आई वुड से, बिकॉज उसने बाहर आके और उस इंडस्ट्री में वो काम करी है जहाँ पे कि गुड लुकिंग होना और कंडीशन और बहुत ज़्यादा बायस रहती है, लोग अपनी मेडिकल कंडीशंस के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। तो वो एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रही है, फिर भी खुल के उन्होंने बताया है कि मुझे पीसीओएस था और मैंने इस कंडीशन को मैनेज किया। और उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं पहले की और बाद की तो सभी देखते हैं अभी मूवीज में, वो सब रेडिली अवेलेबल है। सो एक उनकी जर्नी है। सो खुल के अभी धीरे धीरे बहुत सारी सेलिब्रिटीज हॉलीवुड की बॉलीवुड की सामने आई हैं कि दिस इज हाउ वी हैड मैनेज द कंडीशन, तो हम लोग भी इसको कर सकते हैं। अब क्योंकि इसके लिए ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है नहीं, ये डायबिटीज की तरह है, एक प्रॉब्लम है अगर तो अंडरलाइन कुछ ना कुछ रीजंस हैं तो ये हमेशा रहेंगे। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को क्या करना है, सारी जिंदगी बस उसको ये देखना है कि मुझे मीठा नहीं खाना, थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहना है और एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। नहीं तो क्या होगा, किडनी डैमेज होंगी, आई डैमेज होंगी, एसोसिएटेड और कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाएंगी। सो अगर बहुत ज़रूरत है मेडिकेशन, डॉक्टर्स के जो हार्मोन्स देते हैं लगता है जब उनको की ज़रूरी है वो दे सकते हैं। और सिंपल स्पष्ट शब्दों में हम ये ही कहते हैं, नानी और दादी के नुस्खे। कहीं आपको यूट्यूब इंटरनेट पे जाके स्पेशल डाइट देखने की ज़रूरत नहीं है। जो हम बोल रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमें हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, कैसे करना है उसको नानी और दादी के नुस्खों द्वारा। यानी कि जो वो खाते थे, क्या खाते थे वो, जो लोकल अवेलेबल नेचर से जो प्रोडक्ट मिला है वही खाते थे वो, वही हमें खाना है। प्रोसेस्ड फूड को हमें जितना हो सके अवॉइड करना है। अगर आज हम हेल्दी भी हैं तब भी हमें अवॉइड करना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा एक्सपेंसिव होगा, पॉकेट पे भारी पड़ेगा। बट अभी सभी लोग अच्छा अर्न करने लगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल फैमिलीज दे डोंट बॉदर, सब कुछ एक अच्छी लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। घरों में काम करने के लिए या मशीन्स हैं या हाउस हेल्प्स हैं। सो हम फिजिकली एक्टिव अब रहे नहीं। दिमाग हमारा हमेशा चलता रहता है 24 घंटे, स्पेशली वुमेन का और मदर का तो हमेशा ही चलता रहता है, वो कभी सोता नहीं है। तो स्ट्रेस लेवल, आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और उस समय हम लोग बिंज ईटिंग पे आ जाते हैं जो रेडिली अवेलेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर नीचे से है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और टेस्ट तो पहले हम लोगों का यही टेस्ट था, पहले कौन सा हम कोई ये हमारी दादी नानी मैगीज खा के बड़ी हुई है ना। तो हम यही सैलेड्स की फॉर्म में जो लोग खेतों से या क्यारियों बोलते थे घरों में, कच्ची मूली और गाजर निकाली और उसको खा जाते थे, उसको चूसते थे। अब नहीं दिखता है हमें बच्चों में। हालांकि गांव के बच्चे में कहते फिर भी बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट उनको कंपैरेटिवली शहर के बच्चों से एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, फिर भी फ्रेश खाना खाने को मिलता है। बट एक टेम्पटेशन उनके अंदर भी रहता है कि पता नहीं शहरों में क्या पिज्जा बर्गर खाने को मिल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज है और हम लोग इससे कहीं से डिनाई हो रहे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमें कोई क्योर नहीं है इस कंडीशन का, ना ही किसी और मेटाबॉलिक कंडीशन का। सिर्फ हम उसको मैनेज कर सकते हैं अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। तो वेट मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कोई इसका मंत्र नहीं है, सिर्फ दादी और नानी के नुस्खे हैं, वही हम लोगों ने करना है। और अपने इसी रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी पेशेंट्स हैं पीसीओएस के, उनको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हार्मोन थेरेपी के बाद भी या दौरान भी, काफ़ियों ने बोला। सो हमने फिर और सर्च किया कि हमारे अपने इंडियन लिटरेचर में क्या है, स्पेशली आयुर्वेदा में क्या है। एंड वी फाउंड कि बहुत सारे बेनिफिशियल हर्ब्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं पीसीओएस पेशेंट्स के लिए। बट उसके अलावा जो एक चीज़ जो हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं उनको, जो आराम से रेडिली वो लोग कर सकते हैं, वो है एक्सरसाइजेस, योगा पोस्चर्स। ये हम लोगों ने काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स ने फिर लिटरेचर सर्च किया और ये लिटरेचर से नीचे जो आप देख रहे हैं ये फाइंडिंग्स है जो हम लोगों ने वहाँ से निकाली। और सभी हमें रिपोर्ट्स में जो अच्छे खासे जर्नल्स में छपे हुए ये पेपर्स हैं,
हमने ये नोटिस किया पीसीओएस और पीसीओएस के अलावा जो दूसरे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं जैसे पेन होना या बहुत हैवी फ्लो होना, कम होना, उस सब में ये योगा पोस्चर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है उन सिम्टम्स को डिक्रीज करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप परफॉर्म कर सकते हो तो आप मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी, ब्लीडिंग फेज में भी इनको आराम से कर सकते हो। तो बहुत सारे हमें ऐसे लिटरेचर मिला जहाँ पे कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फिजिकल एक्सरसाइजेस से या योगा से दोनों तरह से आपके मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है और फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। तो स्पेसिफिक नेम के साथ केस कंट्रोल स्टडीज करके, स्पेशली कोबरा, कैट, फिश का ये सब कुछ पेपर से हम लोगों ने निकाले। देन ये हमारी अपनी स्टूडेंट है जिसने ये हमारी हम लोग लेक्चर्स में के दौरान अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कंडीशन के बारे में और उसको मैनेज कैसे करना है। सो ये एनिमेशन के थ्रू हमने थोड़ा सा उसको ब्लर किया हुआ है। सो मेडिटेशन है, आप चाहेंगे तो बाद में ये आपको कहीं पे भी जो परफॉर्म करने के लिए योगा के ऊपर बुक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल में। और अदरवाइज आजकल तो योगा का बहुत अवेयरनेस है, लोगों को टीवी पे भी मॉर्निंग में प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। सो मेडिटेशन से भ्रमरी है, सिंपल बैठ के करना है, और कोबरा पोज है, बहुत आसान है इसको करना। इसे हमने योगा पोस्चर्स वही निकाले हैं रिसर्च पेपर्स में से जिनको करना बहुत आसान है, जिसको आप देख के कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि अभी स्पेशली 30-35 के आसपास अगर आपको लगता है कि अभी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रही है तो हम इतने डिफिकल्ट पोजेस कैसे करेंगे। सिंपल ये कोबरा की तरह सिर्फ बैठना है जितनी देर हो सके और इसको रिपीट करना है आपको। कैट पोजेज है जिसमें आपको उल्टा के और अपने सिंपल कमर को, अपने जो बैकबोन है, स्पाइन को रिलैक्स करना है और उसको टेंशन करना है यू शेप बना के। और फिश पोजेज हैं ये। सो सिंपल ये पोजेज हैं जिसको आप देख सकते हो, जो आप आराम से कर सकते हो। बट लेडीज, वुमेन, प्लीज अपने लिए पहले तो टाइम निकालिए। मैं सभी को भी, स्पेशली वुमेन जो है, मदर्स हैं, यंग मदर्स हैं, और या वर्किंग वुमेन है, और हाउस आई वुड से कि हाउस इंचार्ज हैं, कंप्लीट हाउस इंचार्ज हैं, वो सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए सुबह के टाइम पे, प्रेफरेबली सुबह के टाइम, नहीं तो आपके बिजी स्केड्यूल में जब भी आपको टाइम मिलता है, लंच टाइम में, इवनिंग टाइम में, इवन अगर आपको लगता है कि हफ्ते में 2 दिन ही हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ वीकेंड्स पे कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए। फैमिली को ध्यान रखना, फैमिली की केयर करना एक वुमेन का ही इम्पोर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। बट जब आप ठीक रहेंगे, आप मेंटली और फिजिकली रहोगे, तभी आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाओगे। नहीं तो फिर हम खिंच जाते हैं, हमारी हेल्थ भी खराब होती है और फिर हम बच्चों पे भी गुस्सा निकालते हैं, स्पाउस पे भी निकालते हैं। सो पहला इम्पोर्टेंट है कि हम लोग खुश रहें, हम लोग हेल्दी रहें और हम लोग मेंटली रिलैक्स्ड फेज में रहे, खुद के लिए टाइम निकाल के। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पूरी रिसर्च टीम है जिसमें मेरे साथ ये कुछ एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, और हम लोग यहाँ पे पूरे रीजन्स में जाके हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सचिन है, स्टैटिशियन है, जो हमारे डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर अंतरिक्ष गुप्ता है, मेडिकल ऑफिसर। हमने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुपिंदर है, उनके साथ कोलैबोरेट किया। और रिसेंटली हम लोगों ने गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एम्स भटिंडा के साथ भी कोलैबोरेट किया है। सो अब वहाँ से भी गाइड हमारे एक इन्वेस्टिगेटर हैं। सो रिसेंटली जस्ट कल ही ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई हैं। सो दिस इज आवर होल रिसर्च टीम, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस रीजन में अवेयरनेस क्रिएट करने की और आइडेंटिफाई करने की लाइफस्टाइल चॉइसेस का कितना रोल है और यहाँ की पॉपुलेशन में जेनेटिक्स का कितना रोल है पीसीओएस की पैथोजेनेसिस में। सो एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि मेरे पीपीटी में मैक्सिमम मैंने टील कलर यूज किया है शुरू से लेकर एंड तक। ये टील कलर जो है, दिस इज फॉर दी इट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद पीसीओएस। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अब पीसीओएस अवेयरनेस पे काम कर रही हैं, और हम ये कलर जो है ये पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया गया है। जैसे एड्स के साथ, ब्रेस्ट कैंसर के, हर एक के साथ अपने स्पेसिफिक कलर्स हैं। सो उसी तरह से पीसीओएस के साथ टील कलर को एसोसिएट किया गया है।
और सितंबर में हर साल हम लोग पीसीओएस अवेयरनेस डे भी मनाते हैं, सो दैट इज अगेन एन इंटरनेशनल इवेंट। सो थैंक यू वेरी मच। और इन केस ऑफ क्वेरी आप अभी भी क्वेश्चंस आपके कोई हैं तो लिए जा सकते हैं, और आप मेरी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, हमारे स्कॉलर की भी नोट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट ड्रॉप एन ईमेल इफ एनी ऑफ यू इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस और द कंडीशंस जिसके बारे में हमने बात किया, और आपको आसपास आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड आपको लगता है जिसमें इस तरह की किसी भी तरह की कोई कंडीशन है, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप एन ईमेल एंड वी विल गेट बैक टू यू। So thank you very much. I really thank to Neena ma'am for inviting me again to have this talk with the lovely ladies. Thank you very much. Thanks a lot, ma'am. This was really a very knowledgeable session. In very simple language, you have explained this PCOS and the causes, the management, how we can manage this problem. And we have got so many queries in the chat box. I hope, may I ask you those queries? Yeah, sure, please. Okay, ma'am. Ma'am, there is a student who is asking, most of the people say that after menstruation start, girls will not gain height. Is it true? थोड़ा सा गेन करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे। स्लाइड गेन तो होता है, बट उस तरह स्पर्ट होते हैं। पबर्टी जब आप हिट करते हो ना, एकदम से हाइट गेन होता है। और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, इट टेक्स अबाउट अ ईयर, more than a year. Okay, ma'am. Ma'am, there is another query. A student is saying she is having hairs on her neck. Like, can we think why the hairs are on her neck? It's better to go for biochemical test first. एंड्रोजन लेवल चेक किए जा सकते हैं, उसके बाद ही कहा जा सकता है। Ma'am, there is one more question. Is PCOD and PCOS are same? Yes, same. Actually, डिजीज हम बोलते हैं जब एक सिंपल एक बस शॉर्ट टर्म में है ना, एक कंडीशन है। सिंड्रोम की जब हम लोग बात करते हैं तो मतलब मल्टीपल डिजीजेस जो है वो लिंक्ड है। सो आई प्रेफर टू यूज दिस टर्म PCOS because that's a syndrome. Ma'am, there is another query. Is menopause responsible for this problem? For no. psoriasis problem. Psoriasis. No, psoriasis is an entirely different disease. It is something to link with immune system. Autoimmunity के साथ linked है. One more query. Is it okay to take painkillers during menstrual pain? If no, then what the side effects of the same? See, menstrual cycle is an absolutely normal cycle और रूटीन में एक्चुअली ये पेनफुल नहीं होना चाहिए। ये साइकिल इतने आराम से होना चाहिए कि आपका रूटीन बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। सो अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो यू मस्ट गो विजिट द डॉक्टर। और आपको मोस्ट कॉमन रीजन तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन रहते हैं, स्पेशली यंग गर्ल्स एंड वुमेन में। सो आपको अपना आयरन लेवल चेक करवाना चाहिए। और पेन किलर्स बचे साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, तो यू शुड अवॉइड इट। It's better to diagnose the condition and to cure it. Wait, 2 minutes left. One more student is asking, कैसे कम हो सकते हैं? वो तो बहुत सारे तरीके हैं ना, जो अब थ्रेडिंग है, वैक्सिंग है, सो पीपल गो देयर। डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं। अभी अगर बहुत ज्यादा जिसको कंडीशंस ऐसे रहते हैं, वो लेजर थेरेपी के थ्रू रिमूव करवाते हैं। Then another question is, if a girl has age of 20, could she gain 5-inch height through good diet and exercise? ये तो बड़ा करता है, बट 5 इंचेस तो बहुत बड़ा टारगेट है फॉर एंड दैट एज ऑफ 20।
Like you might have seen so many advertisement in TV, ये वाले शूज पहन लो, ये वाली डाइट खा लो और 5 इंच बढ़ जाएंगे। मे भी इसने वो देखा हो। Then a question is, reason of belly fat भी क्या हार्मोन्स के साथ हो सकता है? ये तो है, देखिए अभी रिसर्च से तो यही पता चला है कि एब्डोमिनल फैट अगर बहुत ज्यादा है तो दैट मीन्स कि इट इज समथिंग टू डू विद द डिस्टर्ब हार्मोन्स, और मेटाबॉलिक डिजीजेस होने के चांसेस काफी इंक्रीज रहते हैं। इसीलिए प्री मिनोपॉजल और मिनोपॉजल स्टेज पे जब हम लोग पहुंचते हैं तो फैट गेन बहुत होता है। 40-50 के आसपास आप देखो कि लेडीज में, काफी लेडीज में वेट गेन रहता है। For any other queries, the participants can unmute and can ask the question or can pose the query in the chat box. There is very positive feedback, like it was really a valuable session. All the participants are giving a positive feedback regarding the session. They had really gained a lot through this session. So thank you, that's my pleasure. Ma'am, one more query is, 2-3 days of periods is okay or not? दैट्स फाइन। हम लोगों ने खुद इसमें काफ़ी सर्वे किया है एंड मेंस्ट्रुअल फीचर्स स्टडी किए हैं अराउंड 3000 सब्जेक्ट्स के। हमारा टारगेट तो काफ़ी बड़ा था बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वी कुड नॉट डू दैट। सो यस, वेरिएशंस हैं 2 डेज 3 डेज से 7 डेज तक, काफ़ी वेरिएशंस है। इफ यू आर नॉर्मल तो ठीक है, हर एक के लिए फिजियोलॉजी अलग अलग है। सो हर एक के लिए वो कंडीशन वेरी करेगी। मे बी मेरे लिए 2 दिन कम हो, मे बी आपके लिए 2 दिन परफेक्ट हो। एंड जेनेटिक फैक्टर भी इसमें मैटर करता है मैम, है ना? जेनेटिक फैक्टर भी मैटर करता है समटाइम्स। इसीलिए बात की जाती है कि आप बात करें अपने घर में अपने बड़ों से, अपनी दादी से, मदर से, सिस्टर से बात करें। अक्सर देखा गया है स्टडीज में कि मेनोपॉज एज भी जो होती है वो वेरी करती है। वो आपकी मदर को किस उम्र में मेनोपॉज हुई है या उनका क्या है, तो ये सब उस पर डिपेंड करता है। सिर्फ आपको क्या मिस नहीं करना है कि अगर पीरियड्स कम या नहीं हो रहे हैं तो उसे ये सोच के कि झंझट से छुटकारा हो गया, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और अगर आप अपने फेस पे लगातार ये बाल देख रहे हैं, हेयर देख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा पीरियड्स भी आपको हो रहे हैं, तब भी आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे। और बाकी सारी साथ में एसोसिएटेड है। और एक ये है कि आपकी रिसर्च में क्या, ये जब हम लेडीज डाइट ठीक कर लेती हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा मोटिवेशनल एक एग्जांपल दिया सारा अली खान का, कि डाइट को ध्यान में रखें, स्ट्रेस को, योगा उन्होंने किया होगा, मे भी ट्रीटमेंट लिया होगा, पूरी तरह से ये क्योर नहीं है, तो ये रिवर्स हो सकता है क्या? मैम काफ़ी हद तक जो इसके जो कंडीशंस हैं, उस अदर जो एसोसिएटेड कंडीशंस हैं उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। बट ये कुछ साल के बाद फिर से हो सकता है। पर जैसे जो मैंने बताया एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है स्किन की या हेयर की, काफ़ी हद तक आप उसको मैनेज कर सकते हो। काफ़ी हद तक आप वापस अपने हार्मोन्स को कोशिश कर सकते हो कि वो रहे लेवल पे। बाकी अगेन ये जेनेटिक्स का भी इसमें कुछ रोल है। तो शायद कुछ अनफॉर्चुनेट होंगे जो नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह से उनके लिए मुश्किल होगा, बट मोस्ट ऑफ अस जो है हम लोग कर सकते हैं। डॉक्टर प्रीति, आपको मिलके खुशी होगी, डॉक्टर रुपिंदर विर्क बराड़ इज देयर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट, यू आर ह्यूमन बायोलॉजी डिपार्टमेंट। डॉक्टर बराड़, you want to ask something? Hello, Hanji ji. Actually, I want to ask about epigenetic changes. You have mentioned that there are some epigenetic changes which also influence. So, can please you add some? See, there are many genes, known genes. हाँ, मैंने एक्चुअली बहुत डिटेल में मैंने जेनेटिक्स पे गई नहीं, क्योंकि मुझे मैम ने बताया था कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके ही होंगे। लेकिन बहुत सारे जीन्स हैं जिनके जो प्रमोटर्स हैं वहाँ पे मिथाइलेशन टैग लगा रहता है, ठीक है। सो वो जीन कितना एक्सप्रेस होगा, उसका डाउन रेगुलेशन होगा, अप रेगुलेशन होगा, लेवल ऑफ जो उसका एक्सप्रेशन है दैट इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ दैट मिथाइलेशन।
सो देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे हाइपो और हाइपर मिथाइलेशन हो सकता है. सो ये हाइपो और हाइपर मिथाइलेशन हम बोलते हैं डिस्टर्ब मिथाइलेशन लेवल फॉर वेरियस जीन्स इट हैज बीन नोटेड. और हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो हम लोग काफी सारे रीजन्स को हमने लिया है, डिफरेंशियल मिथाइलेशन रीजन्स जिनको हम लोग बोलते हैं. तो वहाँ पे हम लोग, हमारा ये 3rd फेज में है प्रोजेक्ट में ही. तो वहाँ पे वी विल सी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे ये एपिजेनेटिक चेंजेस किस तरह के आए हैं. Actually, ma'am, I have also conducted a similar kind of study, epigenetics, particularly methylation study. Ma'am, when I was in Dolphin, then one of my students, he conducted this study, but we had very little, lesser sample size, only 15 or 20, because MSc students, they were capable of doing only that much. Nothing. इसमें सैंपल साइज जो होता है ना आपका थोड़ा ही रहेगा जी. बट मुझे लगा कि शायद सैंपल साइज कम है तो इसलिए कुछ ज्यादा अच्छे से नहीं आया. वी गॉट, आई थिंक वी गॉट 2-3 आउट ऑफ आई थिंक 15 सैंपल थे, तो 15 में से 2-3 में मुझे सिर्फ पैटर्न थोड़ा सा मिला. बट देन आई टेक्निक कौन सी अप्लाई की? आप टेक्निक कौन सी अप्लाई की आपने? मैंने तो सिंपल, क्योंकि इतना यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो सिंपल पीसीआर से ही किया था हमने मेथाइलेशन. आपने स्निप किया है फिर, राइट? वो स्निप है. हाँ, पीसीआर बेस्ड है बेसिकली स्निप ओनली. स्निप्स के लिए तो आपको सैंपल साइज ज्यादा चाहिए, फिर तो 100-200 चाहिए. लेकिन एपिजेनेटिक स्टडीज के लिए बिकॉज ये टेक्निक्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो काफी रिलायबल टेक्निक्स अभी हैं अवेलेबल, तो वहां पे सैंपल साइज थोड़ा ही रहता है. 10, 15, 20 इतना ही काफी रहता है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक. Okay. That is very nice information, very nice lecture. Thank you so much. Thank you, Madhu. Thank you, Dr. Preeti, for sparing time and for nice information and for detailed information, and you have very well elaborated. Thanks to all the participants for joining. आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे अभी अर्जेंट मीटिंग में करना है. थैंक यू. ओवर टू मैम रुचिका, प्लीज. Thank you, ma'am. Ma'am, there is one more query. A student is asking that her periods are not regular. What to do? मैं तो अभी आपको ये कहूंगी कि आप पहले गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, गायनी से मिलके, और मुझे लगता है कि अगर आपके काफी इरेगुलर हैं तो आपको अपना बायोकेमिकल टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी दोनों करवा लेना चाहिए. ठीक है. इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने जो काफी जो फेस कर रहे होंगे, प्रेवलेंस है इसका 10%. सॉरी, वेट करनी पड़ी, वो हमारा तो आपको यू कैन जस्ट ड्रॉप अस इन ईमेल. ठीक है. सो वो मेरे पर और भी किसी को कोई क्वेरी है तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं. आई गॉट अ मेल आपके नाम के. होटल टाइम्स स्क्वायर में रुका था. Okay, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Okay. Thank you very much. Thank you everyone for joining. Thanks a lot.